مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل۔ بہت اچھے۔ تو وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، اس وقت 2:07 میں چاہتا ہے۔ آئیے اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ آئیے آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں، اپنی اصلی مقصد کی جانب چلتے ہیں۔ تو لیجئے ایک ایسے مقرر کے حضور جانا چاہتے ہیں، بلکہ یوں کہیں گے کہ پھر شعلے نوابائز دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا امیر، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک خطابت کے نیر تابع، جامع معقولات و منقولات، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد مستقیم صاحب، استاد عربی ادب جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ ہیں۔ انتہائی ادب احترام کے ساتھ میں مفتی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ماسٹر متین احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جتنے دن مجھے یہاں آتے ہوئے ہو گئے، مجھے بھی یاد نہیں کتنے سال ہو گئے ہوں گے، 17-18 سال ہو گئے یا 15 سال ہو گئے۔ میں بہت بشاشت میں ہوتا تھا، لیکن آج 3 دن ہو گئے میری طبیعت مائک نے بیکار کر دی۔ سیانہ ایک پروگرام تھا پرسوں دوپہر میں، ہم بالکل صحیح سالین، جب میں بولنے لگ گیا تو میں فوراً کہا بھائی مائک تمہارا خراب ہے، انہوں نے کچھ کیا تو اور خراب کر دیا، مائک سکھانے لگ گیا، سب بیکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا میں کر نہیں سکوں گا، ان کا اصرار رہا، آخر یہ ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے گھر رہ گئے، اور میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میں جانوں اور جو آگے کے جلسے ہیں وہ جانیں۔ پرسوں سے سارے جلسے برباد ہوئے، یعنی میری جو تقریر تھی وہ کینسل ہوئی۔ جس نے مان لیا سو مان لیا، اور جس نے نہیں مانا تو اس طرح آ کے بیٹھ گئے جیسے آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ کل 2 پروگرام تھے میرے، پرسوں بھی 2 پروگرام تھے۔ جب سیانے میں نے پروگرام کیا تو وہاں سے مجھے رڑکی جانا تھا، یہاں پروگرام کر کے رڑکی پہنچنے سے پہلے آواز بند ہو چکی تھی۔
रुड़की वालों से हमने बताया, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, लोग हमें झूठा नहीं कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि नाम लिख दिया और आया नहीं तो हमें गालियां देंगे, लोग कहेंगे इन्होंने खामखा हमें बहकाया है। चले गए। फिर कल 2 जगह था, दूसरी एक जगह है ठाकुर द्वारा, काशीपुर ठाकुर द्वारा, उधर उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आ गए, हम झूठे होने से बच गए, आप बैठ जाइए, आपकी जगह बयान कोई और कर लेगा, लेकिन आप नज़र आ गए तो हम झूठा नहीं कहलाएंगे। रात के वक्त में गोंदी पहुंचा, उनका भी यही इसरार। आखिर मजबूर हुआ, उन्होंने भी यही कहा, मेरी जगह पर मुफ्ती अमजद से तकरीर कराई, इन्होंने 2.5 घंटे बयान किया। मैंने कह दिया था कि भाई मेरी मजबूरी है, तू जवान लड़का है, तू झेल सकता है, मेरी तरफ से भी झेल ले। तो उसने बहरहाल मेरे ऊपर ये करम फरमाई कर दी कि मेरे नाम की 1.25 घंटा, अपने नाम की 1.25 घंटा, 2.5 घंटे तकरीर कर दी। मुझे लिटा दिया गया। 1:45 बजे आके मुझे उठाया, जगाया कि हो गया काम। कारी अमीन साहब से भी मैंने फ़ोन पे यही कहा कि मेरी हालत तो हो गई ख़राब। इनका भी कहना यही था कहीं ऐसा ना हो लोग हमें यूँ कहें कि तारीख़ नली होगी, गलत बयानी कर रहे, मालूम नहीं क्या क्या इल्ज़ाम आएगा। आप बहुत पुराने आने वाले हैं, जिस हाल में भी हैं आप स्टेज पर आ जाओ और हमारी तरफ से आपको इख्तियार है तो यहाँ भी हाजिर हो गया। अब इसके बाद मेरा एक शाहपुर में प्रोग्राम है, उनसे भी मैंने फ़ोन किया, उनका भी यही कहना है कि आए बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन बस ये है कि हम माजूर रहेंगे झूठे होने से। तो हर आदमी यही कहता है, अगर मुझे आराम करने की इजाज़त मिल जाती अब तक मैं फ़िट हो जाता। सफ़र, भागना, दौड़ना, ये भी तो आदमी को थकाता है। फिर दूसरी बात ये कि जितने भी मदरसों में हम गए, कहीं भी आज तक तकरीबन इक्का दुक्का तो कहता नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई परहेज़ का खाना बना दे। हर जगह पर बिरयानी, कौरमे, मोटे मोटे नान, यही चीज़ें मिलते हैं। ये बताओ इन्हें एक आदमी कितने दिन खा सकता है? कभी भी मशवरे में ये नहीं सोचते कि भाई कोई बीमार भी हो सके, परहेज वाला भी हो सके, कभी भी नहीं। राशौती का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि राशौती में तो मैं खाना खाता हूँ कारी शौकीन के यहाँ, जो कुछ बनवाते हैं वो वहाँ बन जाता है, जो यहाँ बनवाएंगे यहाँ भी बन जाएगा। लेकिन मैं आम जलसों की बात कर रहा हूँ कि आम जलसों में हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि खाने में हमें परहेज़ नहीं हो पाता, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। अब आज तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, बड़ी शर्मिंदगी हो रही। मैं हमेशा यहाँ बहुत खुल के बोलता था और पूरे साल में ये जलसा मेरे लिए ईद से कम नहीं होता था। जिस तरह ईद की खुशी में आदमी भागा भागा जाता है और खुशो खुर्रम अपने घर वालों के साथ ईद मनाता है, ऐसे ही राशौती में मेरे लिए जलसे का दिन होता था। और इतनी खुशी आज मैं, सच्ची बात ये है कि रोना आ रहा है। मुझे वो शख्सियत बहुत याद आ रही है, मौलाना इकराम साहब। दौर बदलता गया बदलता गया बदलता गया, अब हम बहुत दूर निकल गए। उनका दौर बड़ा ही अजीब व गरीब था। ऐसा लगता था, देखो शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं, शिकायत के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपना अपना फ़र्क होता है। उस आदमी के अंदर कुछ और ही चीज़ थी। वो जहाँ बैठते थे बिल्कुल ऐसा लगता जैसे फरिश्ता बैठा हो। उनकी गुफ्तगू, ज़बान पर सच्चाई, अमल में सच्चाई, अपने किरदार पर सच्चाई, ऐसा शख्स था वो। बहुत याद आ रहा है, लेकिन अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया, हर एक को जाना है। उनके लिए दुआ करते रहे। मैं कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है,
उस आयत का मैं तर्जमा कर देता हूँ, जिस हाल में भी हूँ तर्जमा कर देता हूँ। कुरान करीम में जो अल्लाह ने फरमाया वो ये है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ मांगी। आज के दौर में हम सबको उसे याद करना ज़रूरी है और उस दुआ की रोशनी में अपने आप को आज के दौर में महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। दुआ क्या है? दुआ होती है असल में दिल की तमन्ना, दिल का दर्द जो होता है वो दुआ होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या मांगी अल्लाह से? यूँ कहा, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना। मक्का मुकर्रमा अभी आबाद नहीं हुआ था, अभी तो उनकी औलाद वहाँ जाकर के ठहरी थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आबाद हुआ। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को बलद कहा, शहर कहा, और यूँ कहा कि मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन व अमान का गहवारा बना दे, इस शहर में बदअमनी ना हो। यही वजह है आज तक मक्का मुकर्रमा अमन व अमान की जगह है, हरम कहला रहा है। दूसरी बात यूँ कहा, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, कि मेरे परवरदिगार मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों की पूजा से बचा लीजिए। देखिए भाई, ये मैं कहता हूँ आपको कि आवाज़ बेशक नहीं निकल रही है, लेकिन जो मज़मून मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो इंतहाई कार आमद मज़मून है। क्या फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? दुआ क्या मांगी कि ए मेरे रब, इस शहर को अमन व अमान वाला बना दे। दूसरी दुआ ये मांगी कि मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुत परस्ती से बचाए रखना। आप अंदाज़ा लगाइए कि इब्राहीम जैसा आदमी, अल्लाह का दोस्त और खलील, और उनकी औलाद जिनमें हज़रत इसहाक़, हज़रत इस्माईल, उनकी औलाद में हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, ऐसे ऐसे अंबिया किराम, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ुद भी नबी, बेटे भी नबी, और फिर भी ये फ़िक्र कर रहे हैं मेरे रब कहीं ऐसा ना हो हमसे बुत परस्ती हो जाए या हमारी औलाद से बुत परस्ती हो जाए, बस हम तुझसे पनाह मांगते हैं कि हमें बुत परस्ती से बचाए रखना, क्योंकि बुत परस्ती से बढ़कर के कोई गुनाह नहीं है। बुत परस्त को कभी भी जन्नत में नहीं भेजा जाएगा। अगर कोई बुत परस्त मरता है उसे मुशरिक कहा जाता है। अगर कोई मुशरिक है, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शिरक करने वाला, उसे कभी नहीं बख्शा जाएगा। और इसके अलावा कोई और गुनाह किया होगा तो अल्लाह की मर्ज़ी, वो जब चाहे बख्श दे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे ख़तरनाक गुनाह से बचने की दुआ की कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को, सबको शिरक से बचा लेना। अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? जब इब्राहीम शिरक से बचने की दुआ कर रहे हैं, क्या कभी हमने अपनी औलाद की इस्लाह और तरबियत के लिए इस तरह की दुआएं मांगी हैं? या हमें कभी अपने बारे में ये एहसास हुआ है कि कहीं हमसे ऐसा गुनाह ना हो जाए? दौर हाजिर, आज का दौर जो चल रहा है, दज्जाली ताकतें अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरी दुनिया में अपना मिशन चला रही हैं, और उनका मानना ये है कि हम एक एक मुसलमान को बुत परस्त बनाएंगे, या तो वो ये कह दे कि हम तस्लीम करते हैं बुत परस्ती को, और या फिर उन्हें हम इंतहाई नीचे ले जाके छोड़ेंगे, ख़त्म कर देंगे, भगा देंगे, या फिर बुत परस्ती पे लग जाएं, या फिर वो हमारे ऐसे रहे बन के जैसे फ़िरऔन ने बनी इसराइल को अपना बेगारी खादिम बना के रखा था। अरे सुन रहे हो? क्या समझ में आया आपकी जो मैंने कहा? देखो जी, कुछ भी समझ में नहीं आया। जब आवाज़ ही नहीं निकल रही तो क्या समझ में आवेगा? मैंने कहा इब्राहीम पैगंबर हैं, उनके बेटे पैगंबर हैं, नबी हैं,
फिर भी वो अपनी और अपनी औलाद के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह शिर्क से बचा लियो हम सबको। मैंने आपसे कहा कि हम अपनी औलाद के बारे में कितने फिक्रमंद हैं। हर आदमी इस दुआ के बारे में सोचे कि जब वो नबी होने के बावजूद मुतमईन नहीं और कह रहे कभी भी पलटी मार सकता है शैतान, कौन बच सकता है उससे अगर अल्लाह ना बचाए। तो अल्लाह हमें भी डरे शैतान से, कहीं हम पे भी पलटी मार करके शिर्क में मुब्तला ना कर दे। हमें बचा लेना, औलाद को हमारी बचा लेना। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम भी अपने लिए और अपनी औलाद के लिए शिर्क और कुफ्र और मूर्ति पूजा से बचने की दुआएं करते रहें और तदबीरें करते रहें कि अल्लाह कभी हमसे ऐसा अमल ना हो जाए, वरना ईमान चला गया तो हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। कोई ताकत आदमी को बचा नहीं सकती, ना कोई नबी की दुआ, ना कोई इंसान का। अब आज इस वक्त में सूरत हाल ये है जैसे दस्तरखान बिछा के और तरह तरह के खाने रख के दावतियों को बुलाया जाता है, खाओ इसे खाओ। ऐसे हमारे और आपके खिलाफ और अकीदे और ईमान के खिलाफ मुस्तकिल मेहनतें चल रही हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, कोशिशें करने वाले कर रहे हैं, अंधेरे में नहीं बल्कि बाकायदा वीडियो बना के दिखा के कर रहे हैं। और हम हैं कि इतने सोए हैं कि अपनी औलाद की इस उन्वान से कोई फिक्र नहीं है हमें। मेरे अजीज़ों, सऊदीया से कितना कमा सकते हो आप? एक आदमी 20 साल रहे, करोड़ 2 करोड़ कमा लेगा। सारी दुनिया अल्लाह की निगाहों में मच्छर के पर के बराबर नहीं, लेकिन अगर ईमान है तो सारी दुनिया पे बड़ा हुआ है। ईमान सारी दुनिया से कीमती और सारी दुनिया मच्छर के बराबर भी नहीं। अपने बच्चों के ईमान की फ़िक्र करना ये बेहद ज़रूरी है। हर आदमी अपने घर में अपने बच्चों को ये कहता रहे कि बेटे शिरक नहीं करना, प्रैक्टिस दिखाया करो। आज हमारे स्कूलों में, हमारे पास तो स्कूल है नहीं, हमने तो ये तय कर लिया कि ना तो हम मदरसों पे खर्च करेंगे और ना ही हम स्कूल बनाएंगे अपने। हमें तो गाड़ी लेनी है, मकान बनाने हैं और अपना जहेज़ में जितना जी चाहे खर्च करना है। हमने तो ये तय कर रखा है कि हमें बेहतरीन तो घर बनाना, बहुत अच्छी सी गाड़ी लेनी और शादी बहुत धमाकेदार करनी है। 3 चीज़ों में मुसलमान का पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर हमने बहुत बड़ा मकान ना बनाया तो हम गुनाहगार नहीं हुए। अगर हमने शादियों में बेजा खर्च किया तो गुनाहगार हो गए। सवाल ये पैदा हुआ, हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या बनाया है? आज हम सुनते हैं कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक आदमी मुझसे कह रहा था, ये मदरसों वाले जो हैं चंदा कर ले हुए हैं और खा पी ले हुए हैं, कुछ भी नहीं करते। पहली बात तो ये है कि वो हमसे क्या कराना चाह रहा है। कोई एतराज़ करने वाला हमें ये बताए वो हमसे क्या चाहता है। हमारे यहाँ मदरसों में चंदा इतना आता है कि अपना दाल रोटी का काम बन जाए, हो गया काम। अगर आप बैंक बैलेंस बचा के ये कहते हो राजौती के वालों कि हमारे यहाँ बैलेंस 50 लाख है तो होगा। मैं आपसे पूछ लूँ तनख्वाह कितनी है? 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000। मैं तो जब जानूँ कि जब 30,000 रुपये तनख्वाह हो तो हमारे कामयाब बच्चे अपने आप मदरसों की तरफ भागेंगे। जब इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, लोग कहते हैं मदरसों में क्या मिलेगा, अब भागते हैं स्कूलों की तरफ। स्कूल में सारा पैसा खपा के बचपन से लेके जवानी तक और जवानी के बाद रिश्वतों में खपा के खाली हाथ हो के अब नौकरी नहीं मिल रही। मैंने पूछा, एक जगह CNG डलवाई मैंने, तवज्जो से सुनिए आप, आवाज़ निकले ना निकले लेकिन आप तक तो पहुंच रही है, जो वो तो समझ में आ रही होगी। CNG पेट्रोल पंप के ऊपर हमने गाड़ी रोकी, उधर जो शामली 4 लाइन गया है, बुढ़ाने से आगे निकल के वहाँ एक चाट वाला खड़ा हुआ था। ये बात 15 दिन पहले है। हमें लगी अच्छी, अब भूख भी लग रही थी। हमने कहा भाई जब तक
देख ले मैं। तो मैंने कहा यार तुम्हारी तो हर चीज़ बहुत अच्छी है। उसने कहा मैंने तय किया है कि 1 नंबर की चीज़ लगाऊंगा, मैं धोखा नहीं करूंगा। 1 नंबर की चीज़ लगाएगा तो मेरे मतलब की बात हो गई। क्योंकि जो आदमी ये कहे कि मेरा कारोबार बंद गया, अभी मुझसे एक आदमी ने कहा मौलाना साहब ज़रा कुछ दिखवा तो लो, हमारा तो शोरूम बंद गया पूरा, साए चल रहे हैं, शादियाँ हो रही है, शोरूम पे से कोई सामान ही नहीं ले रहा। तो मैं आपको बताऊं, ना कोई बंधवाता ना कोई खुलवाता, आपके आमाल ही बंधवाते हैं, आपके आमाल ही खुलवाते हैं। अगर आपने ईमानदारी से 1 नंबर से कारोबार किया और कभी धोखा ना किया, सच्चाई के साथ कारोबार किया, तो सुन ले, मैं एक देहाती इब्ने देहाती गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मुझे मेरे नबी के फरमान पर पूरा यकीन है। आका ने इरशाद फरमाया अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, फरमाया सच्चा अमानतदारी के साथ तिजारत करने वाला, सुनो सच्चा, झूठ ना बोले, अमानतदारी के साथ तिजारत करने वाला, क़यामत के दिन अल्लाह उसे नबियों के साथ उठाएगा। ओ भाई, दुकान करते हो, फल बेचते हो, तुम इधर को मुंह कर लेना, तुम्हारी पन्नी में वो मिलेगा जो सबसे नाकिस होगा। घर जाके ये कहोगे बहुत शानदार लाया, घर वाले फेंकने को तैयार हो जाएंगे, ये क्या लाया, ये फल वाले ने आपके साथ छल कपट किया है, उसने हराम खाया। लोग नहीं समझते कि हमने हराम खाया और फिर यूँ कहते हैं हमारा कारोबार बन गया जी। अबे बेईमान, कारोबार तो तू अल्लाह को नाराज करके खुद बांध रहा है अपना। कारोबार वो चलता है जहां अच्छी और सच्ची चीज मिलती है। आप तो यहां से मेरठ जाते हो, आप तो यहां से वहां, ये किठौर है, मुगली होटल है, एक मुगली बहुत अच्छा बनाता है, वो सच्ची बात है, मैं प्रचार करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन 1 नंबर का बनाता है। लाइन लगी रहती है। मैंने भी कई दफ़ा वहाँ पहुँच करके मुझे पकड़ लिया, वो मेरा शागिर्द है कि जी खा के जाओगे, खा के जाओगे। मैं ये कहता हूँ इतना शानदार, वो कहता जी मेरे यहाँ तो होश ही नहीं पड़ता, मुझे इतनी सहल है। जो 1 नंबर का काम करेगा उसका कारोबार बंधेगा नहीं। रब खुद कहता है कि मेरे नबी के साथ होगा अमानतदार, सच्चा, तिजारत करने वाला, बिजनेस करने वाला, सच्चा अमानतदार मेरे नबी के साथ उठेगा क़यामत के दिन, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठेगा। जो रब सच्चाई के साथ तिजारत करने वाले को इतना बड़ा मकाम दे रहा है कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास उसे खड़ा होने का मौका दे रहा क़यामत के दिन, और इतनी ऊंची उसकी डिग्री और पोस्ट हो गई, वो एक मच्छर के पर के बराबर भी जिस दुनिया की वैल्यू नहीं है, उस सच्चे को यहाँ दुनिया में कभी धोखे में मुब्तला नहीं कर सकता है। आपकी समझ में आया या नहीं आया? आ गया? अब सुन लीजिए, ब्रेड बनाने की जिसके यहाँ वो है ना बेकरी, या किसी के यहाँ पापे बनाने की बेकरी हो, इन्हें देखो देखो, इतना बड़ा बड़ा लाएंगे निकाल के। कितने का भैया? का आपकी मर्तबा तो 5 रुपए का आया, इतना बड़ा 5 का नोट वहीं खड़ा है, और इसका जो बिस्कुट है वो ये इतना आ गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया, 5 का नोट वहीं खड़ा है। भाई हराम खाने, बेईमान कहीं के कमीने, जब तेरी ये इतनी गिरी हुई नीयत हो गई, तुझे अल्लाह ताला के अजाब का कोड़ा भुगतना पड़ेगा, उस टाइम तू कहेगा मेरा कारोबार बंधवा दिया। सच्चाई है कि जालिम तेरा कारोबार नहीं बंधवाया, तू हराम खाने पर उतर गया। तो 5 का दे करके लोगों को लुभा करके अब तुझे 6 का या 8 का करना है, तो उससे बड़ा कर, उससे छोटा क्यों लाया? बात समझ में नहीं आई? ये है वो जो यूं कह रहे कि भाई अच्छा, फिर उसके बाद जिस पे बेचारे पे 15 का नक्श लिखना आवे है, शेर खान सुनो, जिस पे 15 का नक्श लिखना आवे है ना, मजे उनके आ गए। अबे युगो तेरे कारोबार को तो बंधवा दिया, 72 कबीलों का सरदार तेरे कारोबार पे बैठा हुआ है, बड़ा खतरे का है। अरे कैसे होगा भाई मौलाना साहब या भाई फला साहब कहने लगे इसमें उल्लू की भसम, ऊँट की फला, शेर की ये, हिरण की झिल्ली, ये आएंगे भाई, ये कहाँ मिलेगा? कि एक देहरादून मिलेगा, एक आगरा मिलेगा, एक नैनीताल मिलेगा, जो मैं कहाँ से लाऊं?
कि भाई ले तो हम भी आएंगे लेकिन बहुत दूर जाना पड़े हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, मंगवा देंगे। कि जी जितने पैसे लगो मंगवा दो। उन्होंने कहा 25,551 रुपये रख दे, इलाज शुरू हो गया। तुम्हें लूटेगा लूटेगा। अरे डग्गे मारी मत करे, ईमानदारी का कारोबार चलाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बढ़ाता जाएगा, फलाता जाएगा, फूलाता जाएगा। जो लोग ये छोटे छोटे खुदरे व्यापारी भी बड़ी बड़ी बेईमानी कर रहे हैं, बेकरियों वाले, फल वाले, रेडी वाले, ठेले वाले, जब ये सारे बेईमानी पर उतर जाएंगे तो भैया फिर इनके कारोबार बंधे हुए दिखाई देंगे। हालांकि अल्लाह की पकड़ का कोड़ा आकर के बांध रहा है इनके कारोबार को। दुआ कर लो और अल्लाह से मांग लो और कहो धोखा नहीं दूंगा, अल्लाह खोल देगा। और जब धोखा दोगे अल्लाह बांध देगा। तो भैया तुम आमिलों पे भी लूटोगे और वैसे भी लूटोगे। वो जो आराम खाया ना, जैसे एक आदमी 2 नंबर का कारोबार करता रहे करता रहे करता रहे, अगर वो टैक्स देता हुकूमत को, जीएसटी देता, तो हुकूमत उसकी हिफाजत करती। जीएसटी नहीं दी, टैक्स नहीं दिया और उसने 20 किलोवाट मंजूर करा रखी है, 60 किलोवाट से काम कर रहा है, उसने फैक्ट्री के अंदर माल इतना तय किया, उसका टैक्स तय किया और बना रहा उसका 4 गुना, तो एक दिन ईडी आकर के उसकी पकड़ ज़रूर करेगी। जब यहाँ भी पकड़ हो रही है तो वहाँ भी पकड़ होगी। जो लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे उनकी पकड़ यहाँ भी है और वहाँ भी है। आपके कारोबार को किसी ने नहीं बंधवाया, अल्लाह की कसम खा सकता हूँ, आपके अमल ने आपके कारोबार को बांधा है। बात पता नहीं समझ में आई या नहीं आई। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात तो मैं वहां से लाया था कि दौर हाजिर में हमारे ईमान के डाकू चारों तरफ से हमारे ऊपर लग गए। जान का कम, माल का कम, ईमान का डाका बड़ा इस वक्त में तैयार हो रहा है। और सुनो, दज्जाल हमारी जान का दुश्मन नहीं, दज्जाल हमारे ईमान का दुश्मन है। और दौर हाजिर में दज्जाल से मशवरा करने वाले यहूदी दौर हाजिर में इस वक्त में हमारे ईमान के खिलाफ तैयारियां हो रही है कि ईमान से कैसे इनको महरूम किया जाए। आज तो कुछ भी नहीं, दौर आगे आगे बहुत तगड़ा आएगा, बड़ा तेज दौर आएगा। अपने को मत देखो, हमारी तो गुजर गई, अपनी नस्लों की देखो, इन नस्लों का क्या होगा। अगर आपने अपने नस्लों के बारे में आज फिक्र न की और अपने माल को यूं ही हवाओं में उड़ाते रहे, शादियों में उड़ाते रहे, मकानों में लगाते रहे, फलाओ फला, तो फिर याद रखियो ये नस्लें क्या कहेंगी हमें कि हमारे गांव वालों पे इतना रुपया था, एक कॉलेज बनाकर नहीं गए। हम ये कहते हैं बुर्का और हिजाब और ये स्कार्फ, ये पर्दा, ये सारी चीज़ें नोची जा रही हैं आज, इसलिए कि हम पे स्कूल नहीं। अगर मद्दे मुकाबिल तेरे पास एक लाठी है और मेरे हाथ में भी लाठी हो तो मेरी तरफ तुझे देखने में सोचना पड़ेगा 100 बार। याद रखना, अगर मेरा भी स्कूल होता, खुदा की कसम कभी भी सूर्य नमस्कार न होता, कभी भी हमारी बच्चियों के पर्दे के ऊपर उंगलियां न उठती, कभी भी हमारी बच्चियों के हिजाब को लोगों की निगाहों में इस तरह नोचने का मौका न मिलता। मगर चूंकि हमारे पास बदल नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, इसलिए हमें बर्बाद करने के लिए जगह जगह इस तरह की वारदातें हो रही हैं। और इस तरह फिरका वारियत को बढ़ावा देकर बार बार ये किया जा रहा है कि मुस्तकिल मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है, ईमान के ऊपर बार बार जद पड़ती है। आज हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेजों में मजबूरी में जा रहे हैं, मगर बच्चों की मजबूरी है पढ़ना, हमारे पास बदल नहीं। तो जिसका स्कूल है, उसका अपना यूनिफॉर्म है, वो कहता तुम्हें उल्टा लटकना पड़ेगा, पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो अपने घर भागो। भाई समझ में नहीं आई? हमारा ये मदरसा है, हमारे मदरसे में कोई आए दाखिला कराने और ये कहे मेरा बच्चा कच्छे में आएगा, हम कहेगा हम तो नहीं पढ़ाते। हमारा बच्चा पैंट शर्ट में आएगा, हम कहेंगे हम तो नहीं पढ़ाते, हमारा यूनिफॉर्म तो कुर्ता पजामा है।
तो जब हम अपने इदारों के अंदर किसी को इस तरह नहीं बर्दाश्त करते, तो फिर ये बताइए ईमानदारी से दूसरा कैसे बर्दाश्त कर लेगा? हमारे पास पैसे की कमी नहीं, शोर्स की कमी नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज सब कुछ है, लेकिन आज तहरीक चलाने वालों की और आगे बढ़ने वालों की कमी है। लोगों पर एतमाद नहीं किया जा रहा। जो आगे बढ़ना चाहे उसके बारे में ऐसा लगता है जैसे खा जाएगा पैसा, जैसे ठग लेगा वगैरह वगैरह। आप इकट्ठे हों, मीटिंग करें और ये तय करें इंशाअल्लाह राजौती को एक बेहतरीन स्कूल बना के दिया जाएगा जिसमें कुरान भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें कम अज़ कम हमारी असरी तालीम कम अज़ कम 12वीं तक का स्कूल होगा, जिसमें हमारा अपना यूनिफॉर्म होगा, हमारी बच्चियों की हिफाजत होगी। उम्मीद है अगर आप इस पर गौर करेंगे तो लिस्ट बना लेना, जितने बच्चे बाहर कमा रहे हैं और जो घरों में रह रहे हैं, अगर 5,000 रुपये महीना भी इस फंड में डालेगा, किसी को मुसीबत नहीं आ गई। उम्मीद है कि करोड़ों रुपये हर महीने इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन तहरीक नहीं चला पाते, कोशिश नहीं कर पाते। आज के दौर में अगर रिश्वत देकर भी हमारा काम होता हो, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सुन लो, आज के दौर में रिश्वत दे करके हमारा काम होता हो तो रिश्वत गुनाह नहीं होगी, मजबूरी है हमारी। आज के दौर में ज़कात का पैसा भी हल्की फुल्की तमलीग करा के अगर उसमें खर्च किया जाएगा, हम कहते हैं उस तमलीग के ज़रिए वो पैसा भी चलेगा, क्योंकि इस्लाम, शाइर इस्लाम की हिफाजत के लिए कदम उठाया जा रहा है। अगर हमने आगे बढ़ करके ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लें हमें दुआएं देंगी, उनके ईमान महफूज हो जाएंगे और वो सलामत रहेंगे। ये तुम्हारी कटिंग, ये तुम्हारे ड्रेस, ये तुम्हारे ये लोअर और ये शर्ट ये काम नहीं आएंगी। काम आएगा तो यही नेक नामी के साथ तालीम हासिल करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब शुरुआत में मुखातब बनाया तो इल्म का हुक्म दिया था कि पढ़िए। वो नबी जिसकी शुरुआत ही तालीम से हुई हो, उसकी उम्मत का हाल देख लीजिए आप क्या हो रहा है। और परंपरा ये चल रही है कि क्या करेंगे पढ़ के, 5-7 हज़ार तनख्वाह मिलेगी, 8-10 मिल जाएगी, सऊदी चलेंगे भाई, हाफिज हो गया सऊदी, कारी साहब हो गए सऊदी, फला हो गया सऊदी। अबे सऊदी कर रहे हो, चले जाओ, जाने को तो कुछ नहीं, लेकिन इस कुरान का क्या होगा? अरे इन मदरसों का क्या होगा? कुछ सोच रहे हो या नहीं? सऊदी और अरब इमारात और दुबई और फला यही रह गए। जाओ कमाओ, मना नहीं, लेकिन अपनी बूद और बाश को हरगिज मत बदल लेना। मुझे ताज्जुब होता है उस आलिम पर, उस कारी पर कि जो दुनियादारी में पढ़ने के बाद दाढ़ी कटा दे, अपना हुलिया बदल ले। तेरा कुरान पढ़ने का क्या हुआ? अगर तू इस हुलिये में आ गया तो बता, तुझे देख करके अगर ये कौम के बच्चे बिगाड़ की तरफ जाएं और तेरी तौहीन करें तो कौन जिम्मेदार है? इसलिए मैं आलिमों से, हाफिज़ों से, कारियों से भी कहूँगा, आप लोग इन मदरसों की पैदावार हो, खुदा के वास्ते इन मदरसों की इज़्ज़त बचाओ, अपनी इज़्ज़त बचाओ, उलमा की इज़्ज़त बचाओ। और आपसे भी कहता हूँ, ये मुस्तफ़ा इस कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। हम सब की ज़िम्मेदारी है इस दीन को बचाना, चाहे पैसे से या जान और माल से या तालीम, जैसे भी हो सकता हो, हर हाल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत में अपना अपना किरदार अदा करे। उम्मीद है कि जो चंद मारूज़ात मैंने आपके सामने ज़िक्र की है, आप इनके ऊपर अमल करने की कोशिश करोगे और गांव में इंशाअल्लाह एक स्कूल के बारे में, ऐसा स्कूल जो कम अज़ कम 12वीं तक का हो, इंटर कॉलेज के बारे में कम अज़ कम आप मशवरा करोगे और ये तय करोगे कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ इंशाअल्लाह अपने दीन और अपने ईमान और अपने शियार और यूनिफॉर्म की हिफाजत के साथ उस स्कूल में पढ़ेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाक